हेलो एवरीबॉडी, हाउस एवरीवन डूइंग? आई होप आप लोग ठीक हो, अपने घरों पे हो एंड एंजॉयिंग राइट स्टडीइंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंटली, मोस्ट इम्पोर्टेंटली. हाय, आई डॉक्टर गीतांजलि शर्मा. I welcome you all to yet another interesting session in biology reproduction on behalf of Talking Textbooks Kotala, leaving no child behind. So बच्चों, आज हम लोग वापस से जो है, in the last class what did we study? We studied about the फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना. एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू कि आपको अच्छे से पार्ट के बारे में पता होना चाहिए, सो दैट आगे का जो प्रोसेस रहता है ना, सो दैट विल बी मच मोर क्लियरर टू यू. ऑलराइट, लेकिन हमारा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आई एम वेरी मच डिलाइटेड अगेन टू इंट्रोड्यूस यू गाइस जो भी नए हैं to this platform of Talking Textbook, जहाँ पे हम आपको आपके school examinations from the class 6 to 10th and also for your Olympiads for class 6, 7th and 8th, and also for some really good examinations like NTSC, NSCJS and PRMO के लिए preparation करवाते हैं right from the scratch. Alright, so yes, then who are those brilliant people who are behind this Talking Textbook? So there we go. This is the excellent team of TTV, always there for you in guiding you throughout the journey. ठीक है, and I believe most of you know about these phases, right? So now this is something about me for the student who doesn't know about me. Hi there, this is Dr. Gee, or you can also call me Dr. Gitanjali Sharma. ठीक है, so this is something very brief about me. ठीक है. Yes, so now moving ahead. This is the Telegram handle, about the Telegram handle of Talking Textbooks Total Life. बच्चों यहाँ पे इस पेज का importance, let me explain it to the guys, the fellas who are newbies here. So can you see these different links here? ये सारे links हैं for the basically here you get the sample material, the DTPs. Okay, you just get to have a sneak peek about the material and everything, whatever is being available to you. So just visit this Telegram handle of TTB, and then आपको सारा जो भी sample है वो यहाँ पे मिल जाता है Talking Textbooks की DPPs का material का. Alright. So what you need to do is just go and have a sneak peek at that, and then you'll get to know ki exactly what is there in the treasure of Talking Textbooks for you guys, especially. And then if you find it good, and आप वो तो खैर anyways, आप अगर आप देखोगे उसको थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको definitely अच्छा ही लगेगा, because it's like specifically designed for you guys, exclusive for TTV kids, right? So, and then whatever you feel like, if you feel like purchasing it, then you can just go on to www.talkingtextbooks.in, which is the official website of TTB. And then यहाँ पे ये दो boxes देख रहे हो ना, तो ये boxes basically आपको given है यहाँ पे. And can you see this red one and this purple one? तो दो तरीके का आपको यहाँ पे packages provided हैं बच्चों. ठीक है, whatever suits you the best, you can just opt for it. Okay, जो भी आपको ठीक लगता है आप उसके लिए opt कर सकते हो. And then also you can apply my code GSLive, okay, so that you may get a 30% instant discount. You will get, okay. And then all possible kinds of payment methods have already been provided for you, so that you do not face any inconvenience. ठीक है, so जल्दी से जाओ देख लो एक बार टेलीग्राम पे what all is there, and then आपको अच्छा लगता है then you can just go to the website and have a purchase. Alright, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों. हमारे TTV के स्टूडेंट्स के लिए टॉकिंग टेक्स्ट बुक का एक बहुत ही अच्छा और एक्चुअली बहुत ही एनर्जेटिक रिचुअल मैं इसको मानती हूँ, है ना. The promise to self, that is how we are promising to ourselves, right? So this is all about your cardinal promise, and there is this make to it. I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student, which again, I know my kiddos are already very brilliant and smart enough, है ना. But then again, खुद को थोड़ा सा एनर्जाइज एक्स्ट्रा कर लोगे तो क्या बिगड़ेगा भाई, है ना. चलो आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर के साथ. बच्चों लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था about the female reproductive system, the parts of female reproductive system, isn't it? We studied about it, right? है ना. आज हम लोग पढ़ेंगे menstrual cycle के बारे में primarily. All right, what will we study? We'll study about the menstrual cycle now, kids.
I want you guys to pay very, very, very clear attention on whatever I'm gonna tell you today, ठीक है? Because बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों ये टॉपिक, बिकॉज इस पे अच्छे खासे क्वेश्चंस बन के आते हैं। दूसरा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना, इट गेट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट एज वेल, ठीक है? थोड़ा सा मतलब अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। सो आई जस्ट वांट यू गाइस टू पे अटमोस्ट अटेंशन हियर, ठीक है? एंड देन रेस्ट लीव ऑन मी। अब बच्चों देखो, सबसे पहले तो हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसको आप क्या बोलते हो? और रिप्रोडक्टिव साइकिल, ठीक है? क्या बोलेंगे इसको हम लोग? लिख लो, रिप्रोडक्टिव साइकिल, ठीक है? हमने इसको बोला मेंस्ट्रुअल साइकिल और द रिप्रोडक्टिव साइकिल, ठीक है ना? इसको लिख लो। अब देखो, इसको रिप्रोडक्टिव साइकिल क्यों बोलते हैं? इसको व्हाई इज इट कॉल्ड एज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल? देखो, मेंस्ट्रुअल जो है बच्चों, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मेंसा। किस वर्ड से डिराइव्ड है ये? मेंसा, MENSA। मेंस्ट्रुएशन कहां से आए? डायरेक्टली फ्रॉम द वर्ड मेंसा मीनिंग अ मंथ। यानी कि ये जो साइकिल है कितना टाइम के लिए एग्जिस्ट करती है? फॉर 1 मंथ। दैट इज, अगर हम लोग को जनरली पता ही है हाउ मच, 28 डेज ऑन एन एवरेज। हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे एवरेज लिखते हैं, जरूरी नहीं है कि यही एब्सोल्यूट नंबर ऑफ डेज में मेंस्ट्रुएशन एक फीमेल के अंदर कंप्लीट हो, ठीक है? किसी किसी को ज्यादा टाइम भी लेता है, अगर किसी को कोई अनोमली हो जाती है, ठीक है? ठीक है, यानी कि कोई अगर बॉडी में प्रॉब्लम है तो ये घटता बढ़ता भी रहता है, ठीक है? तो अभी इंपॉर्टेंट क्या है? अबाउट नोइंग कहाँ से डिराइव हुआ है वर्ड मेंसा मीनिंग अ मंथ। दैट मीन्स दैट इज क्लियर कि ये साइकिल जो है ये 1 महीने के लिए होता है, ठीक है? यानी कि हर मंथ में रिपीट होता है। व्हाई? बिकॉज नाउ इट्स अ साइकिल। साइकिल क्या होता है बच्चों? दैट इज अ रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, राइट? व्हाट इज अ साइकिल इन जनरल? दैट इज अ रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, है ना? साइकिल क्या होता है? रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? यानी कि अगर इसको हमने बोला मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, या फिर रिप्रोडक्टिव साइकिल, यानी कि दिस इज अ साइकिल विच इज बीइंग रिपीटेड, यानी कि इन अ पीरियड ऑफ 28 डेज और अ मंथ, ठीक है? यानी कि दे आर सर्टेन स्पेसिफिक इवेंट्स, ओके, और अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच इज बीइंग रिपीटेड रेगुलरली, ऑलराइट? सो ये था आपका बेसिक अबाउट दी मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है? जिसको हमने क्या बोला? मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको हमने क्या बोला? और रिप्रोडक्टिव साइकिल, ऑलराइट? अभी जो है बच्चों, आप लोग क्या करोगे? जो जो भी मैं यहाँ पे हाईलाइट करती हूँ, एज यूजुअल यू नीड टू राइट इट डाउन, एंड यू कैन ऑल्सो राइट दिस पार्ट ऑल्सो जो मैंने लिखवाया है, ठीक है? तो द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल है बच्चों, हम लोग जो है पहले इसका बेसिक जानेंगे, ओके? वी विल स्टडी अबाउट द बेसिक एंड देन लेटर ऑन आई विल रीड द थ्योरी फॉर यू, ऑलराइट? लेकिन अभी जो मैं पार्ट आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू नीड टू, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू पे वेरी वेरी प्रॉपर अटेंशन जो मैं बताने वाली हूँ, है ना? अगर ये आपको पता है थ्योरी, आपका ऑलरेडी आपका जो है इजीली सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है? So now moving ahead, bachcho, what is there in menstrual cycle? What is happening in menstrual cycle is that, see, every month, ठीक है, it happens in 28 days. So basically हो क्या रहा है यहाँ पे? What is happening here is in the menstrual cycle that every month, just a moment, I'll just take out my pen here. Yeah. Yeah. So every month, what is happening here is बच्चों, in menstrual cycle, during menstrual cycle के दौरान क्या हो रहा है? Every month the uterus, हमने यूट्रस के बारे में पढ़ा था, पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट? यूट्रस इज preparing itself preparing itself for the baby, ठीक है? बेसिकली किसके लिए प्रिपेयर करती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या हो रहा है? दैट द यूट्रस इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर बेबी, ऑलराइट?
कैसे प्रिपेयर करती है बच्चों? सी, यूट्रस जो है ना, ये थोड़ी सी क्या हो जाती है, ज्यादा यू कैन से फुल ऑफ ब्लड, राइट, जिससे कि बेबी को अंदर क्या दे सके, न्यूट्रिशन दे सके। ऑलराइट, क्या हो जाती है, जो इनर लाइनिंग होती है ना यूट्रस की, क्या, दी इनर लेयर, इनर लेयर, ठीक है, बहुत ज्यादा कैसी बन जाती है, नरिशिंग, नरिशिंग यानी कि बहुत ज्यादा फुल ऑफ ब्लड, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स बोल सकते हो आप, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या प्रोवाइड कर रहा है बच्चों, अल्टीमेटली जितना ज्यादा इट वुड बी फुल ऑफ दिस ब्लड वेसल्स, तो उतना ज्यादा बच्चे को क्या होगा, नरिशमेंट, है ना। क्योंकि बॉडी में किस कौन सा ऐसा टिश्यू है जिसके थ्रू न्यूट्रिशन सारे बॉडी पार्ट्स को मिलता है, दैट इज योर ब्लड ओनली, है ना। सो सी विच, नाउ व्हाट इज दिस इनर लेयर? बेसिकली बच्चों, यूट्रस की आपकी 3 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। एंडोमेट्रियम, राइट इट डाउन, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम and then your perimetrium, है ना। एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम, ठीक है। अब बच्चों, मेजर चेंजेस जो आते हैं ना आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, किस लेयर में आते हैं? एंडोमेट्रियम, विच इज द इनर मोस्ट लेयर। जैसे अगर ये 3 लेयर है, तो ये एक इनर मोस्ट लेयर, दिस इज द एंडोमेट्रियम। क्या चेंजेस आ जाते हैं? बहुत ज्यादा वैस्कुलर हो जाती है। ये क्या हो जाती है बच्चों? बहुत ज्यादा वैस्कुलर हो जाती है ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, ठीक है। वैस्कुलर अगेन का क्या मतलब? बहुत ज्यादा नरिशिंग, फुल ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। बहुत ज्यादा फ्लफी हो जाती है एकदम, एनरिच्ड, ऑलराइट। सो मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ? बिकॉज दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। एवरी मंथ the uterus is preparing itself for the baby. Which layer of the uterus? Endometrium. What is the preparation going on? कि हर महीने यूट्रस क्या करती है, खुद को बेबी के लिए प्रिपेयर करती है। कैसे? खुद को बहुत ज्यादा वैस्कुलर बना के, ठीक है। सो दिस इज द रीजन वाई मेंस्ट्रुअल साइकिल इज हैपनिंग, ठीक है। नाउ इफ वी लुक हियर, व्हाट हैपेंस इज बच्चों, दैट मान लो कि किसी टाइम, ओके, फर्टिलाइजेशन, अगर इन केस मान लो, इन केस इफ आई टेल यू दैट द फर्टिलाइजेशन, वेट अ मिनट, ठीक है, ध्यान देना। अगर बच्चों किसी समय पे अगर एग जो है हमारी ओवरी से निकला, ओके, निकला, और अगर स्पर्म से वो क्या नहीं हुआ, फर्टिलाइज नहीं हुआ, ठीक है। क्या हुआ? नॉट फर्टिलाइज। अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होता है, दैट जो इनर लाइनिंग होती है ना यूट्रस की, विच वन? दिस इनर लाइनिंग, दिस इज योर एंडोमेट्रियम, थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, ये क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन, एंड उस ब्रेक डाउन की वजह से ही इट रिजल्ट्स इन ब्लीडिंग, और विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मेंस्ट्रुअल ब्लड, menstrual blood, ठीक है। Now getting my point that why does bleeding happens in menstruation? What is the reason? Why? Because the egg which is being released from the ovary does not get fertilized. अगर उसको sperm नहीं मिलेगा fertilize करने को, तो वो जो egg जो होता है ना, जो रिलीज होता है ओवरी से, वो क्या हो जाता है, मर जाता है। अब see, now the uterus, what happens is it is preparing itself, it is making itself so much vascular, right, full of blood vessels. Why? So as to bear the baby. लेकिन जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन यानी कि ओवम एंड स्पर्म का मिलना जब हुआ ही नहीं है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो ये एग क्या करता है बच्चों? इट डाइज, ओके। नाउ इफ इट डाइज, तो यूट्रस का इतना ज्यादा नरिशिंग होने का सेंस ही नहीं है, राइट। सो व्हाट हैपेंस इज दैट जो अंदर का उसने प्रिपरेशन किया है अपनी इनर लेयर का, राइट, so what happens is that the thick lining of the uterus breaks down, which results in the menstrual flow. Getting my point? ये इसका basis था बच्चों की menstrual cycle, basically why is it happening, right? So this was the basis of your this thing, of your menstrual cycle, ठीक है। Now we'll see, let me highlight some important points. The menstrual cycle, a thick lining grows in the uterus to receive the fertilized egg cell, right? जैसा मैंने बताया था कि यूट्रस अपना इंटरनल लाइनिंग को क्या कर लेती है, प्रिपेयर so as to receive that
fertilized egg. Which egg? The fertilized egg cell. If any, see there it's written already. If any, अगर कोई egg fertilized उस समय पे होया हुआ है तो in case the egg cell is not fertilized, the thick uterus lining breaks down. The thick uterus lining breaks down, leading to bleeding. This is called as your menstruations or periods. All right, getting my point? समझ में आया सबको? बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है बच्चों, है ना? देखो यहाँ पे इसने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया. सी she has prepared herself, right? The uterus has prepared itself with by thickening its inner layer in order to facilitate the proper growth and nourishment of the fertilized egg जो embryo आएगा. लेकिन अगर fertilization नहीं हुआ है, ठीक है, तो एग क्या कर गया? मर गया. ओके, अब ये मर गया तो इसकी वजह से फिर क्या है? यूट्रस loses all the hope and it also breaks down in the form of the menstrual bleeding or menstrual blood flow. ठीक है, getting my point? ठीक है, यही हमने पढ़ा था. Now see, this is the only theory which is given. Let's just read it out. If a sperm is not available at the time of ovulation, ठीक है, मान लो अगर कोई sperm नहीं आया, okay, not available at the time of ovulation, and fertilization of ovum or egg does not take place. So fertilization क्या होगा बच्चों? Would not take place. Now since the ovum or the egg, the fertilization doesn't take place, so the thick and soft uterus lining which is having a lot of blood capillaries, ठीक है, लॉट ऑफ ब्लड कैपिलरीज, मैंने बताया था ज्यादा वैस्कुलर हो जाती है, ब्लड वेसल्स ज्यादा आ जाती है, कैपिलरीज उसमें क्या हो जाएंगी? ज्यादा बढ़ जाएंगी. ठीक है, दैट इज द ओनली रीजन इट बिकम्स सो थिक एंड नरिशिंग बिकॉज इट हैज टू सपोर्ट द डेवलपिंग एम्ब्रियो. लेकिन फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं तो एम्ब्रियो कहां से आएगा? राइट. So thus इतनी सारी कैपिलरीज दे आर नॉट रिक्वायर्ड. राइट, है ना? दे आर नॉट रिक्वायर्ड. तो क्या होता है? दैट अनफर्टिलाइज्ड ओवम डाइज. ठीक है, कितने दिनों में? विद इन अ डे मर जाता है. और यूट्रस लाइनिंग जो है, यूट्रस लाइनिंग भी क्या कर जाती है बच्चों? ब्रेक डाउन. ठीक है, वो भी क्या होगी? इट वुड ब्रेक डाउन. नाउ सिंस द थिक एंड सॉफ्ट यूट्रस लाइनिंग कंटेन्स अ लॉट ऑफ ब्लड वेसल्स, so the breaking of the uterus lining results इन ब्लड अलॉन्ग विद अदर टिश्यूज. ठीक है, तो क्या होता है कि लाइनिंग पूरी अंदर से जो है इट वुड रिजल्ट इन दी मेंस्ट्रुअल ब्लड. दिस ब्लड एंड अदर टिश्यू कम्स आउट ऑफ द वजाइना इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग. ओके, ठीक है. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों की मेंस्ट्रुअल फ्लो को अगर हमें डिफाइन करना है, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल फ्लो? हाउ वुड वी डिफाइन इट एज दैट the breakdown and removal of the inner thick and soft lining of the uterus along with its blood vessels in the form of vaginal bleeding is called or would be called as menstrual flow or menstruation. इसको लिख लो बच्चों कि menstruation या menstrual blood flow क्या होता है? Breakdown and removal of the inner thick and soft lining of the uterus. कौन सी है बच्चों जो अभी मैंने आपको लेयर बताया था ना? What was the name of the layer I told you? That is your endometrium. Endometrium. ठीक है, ये लेयर होती है यूट्रस की. 3 लेयर्स के बारे में मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था. राइट, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम विच इज द मिडिल वन. पेरीमेट्रियम ये आउटर वन होती है. ठीक है, दिस इज द आउटर वन. पेरीमेट्रियम हो गई आपकी आउटर. ठीक है, ये हो गई मिडिल और ये हो गई आपकी इनर. ठीक है, यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर. ठीक है, so what is happening here is that the inner thick and soft lining of the uterus along with the blood vessels in the form of vaginal bleeding when it comes up, that is called as the menstrual blood flow or the menstruation. ठीक है, so write it down. इसको लिख लो. ठीक है, write down this definition, है ना? Then we'll move forward. उसके बाद बच्चों विल ऑल्सो डिस्कस दैट वन मोर डेफिनेशन दैट इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज द सेक्सुअल साइकिल. ठीक है, इसको सेक्सुअल साइकिल भी बोलेंगे. एंड देन ये कैसे स्टार्ट हो रही है, क्या हो रहा है? अगेन व्हाटएवर इट इज, एंड अगेन आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू. पहले इसको लिख लो.
ठीक है, चलो जी, मूविंग अहेड नाउ। चलो, द सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स, इसको और क्या बोलेंगे बच्चों? सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल और मेंस्ट्रुएशन साइकिल। देखो कैसे हो रहा है। सबसे पहली बात तो बच्चों की, इसका इनिशिएशन कब होता है? इसका इनिशिएशन कब होता है? दैट इज इंपॉर्टेंट टू नोट। इट इज इनिशिएटेड इन द प्यूबर्टल एज ग्रुप। विच ग्रुप? At the age of puberty, or we can also call it as the pubertal एज ग्रुप। कितना होगा बच्चों प्यूबर्टल एज ग्रुप? 10 to 12 years of age, okay, in the female, all right। ये तब at that time it would take place। इसमें क्या होता है? that what happens is that, see, menstrual cycle will only take place when the ovaries are mature enough। अभी ovaries mature कैसे होती हैं बच्चों? क्या होता है that when a female reaches the age of puberty or adolescence, what would happen is that certain hormones are released inside her blood। क्या होता है? There are certain hormones, there would be around there would be certain sex hormones, okay, which sex hormones would be released in her blood, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी ovaries जो क्या होने लग जाती है? mature। Now if the ovaries have started to mature, she would start getting ovulation, यानी कि ovaries से eggs release होना start कर देंगे। अगर eggs release होना start कर देंगे तो that means female is ready for fertilization, but it doesn't happen। So that is the reason why that unfertilized egg, if it's not receiving sperm, would result in the menstrual blood flow। ठीक है, ovaries to become mature। तो कैसे हो रही है बच्चों? प्यूबर्टल एज ग्रुप पे जैसे ही फीमेल आई, उसकी ब्लड में कुछ सेक्स हार्मोन्स रिलीज हुए, उनके रिलीज होने की वजह से, ठीक है, ये रिलीज कब होता है? प्यूबर्टल एज ग्रुप में ही होता है, यानी कि दिस इज फॉर श्योर कि 10 to 12 ईयर्स के एज के बिटवीन ही होगा। ठीक है, एट टाइम्स इट ऑल्सो एक्सटेंड्स टू 13 to 14 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो हम 10 to 14 का भी एक यहाँ पे रेंज लेके चल सकते हैं। ऑलराइट, तो जैसे ही हार्मोन्स रिलीज हुए, उसकी ओवेरीज मैच्योर होना स्टार्ट कर देती हैं, ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है, एंड देन फाइनली मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस। Now, usually one mature ovum is released from the ovary into the oviduct यानी कि your fallopian tube। ठीक है, once every 28 days। ठीक है, usually one mature ovum is released from the ovary into the oviduct once every 28 days। This is called as your ovulation। Write down, हर 28 दिन में दोनों में से, ठीक है, usually one mature ovum is released from the ovary into the oviduct once every 28 days। oviduct would stand for your fallopian tube। ठीक है, write it down। all right, yeah, write it down। ठीक है, now before ovulation the inner lining of the uterus becomes thick and spongy and full of tiny blood vessels। कैसी हो जाती है बच्चों? एंडोमेट्रियम हमने भी पढ़ा था, thick, spongy and full of tiny blood vessels or blood capillaries to prepare itself to receive the fertilized ovum or egg in case if it get fertilized। यानी कि अगर fertilization होता है, उसको तो यही पता है ना कि fertilization हो रहा है, उसको तो बस इतना पता होता है menstrual ovulation हुआ, जैसे ovulation हुआ she would start preparing herself। ठीक है, जैसे ही ovulation होगा the uterus would start preparing herself कि okay, then she gets excited, okay, now I would receive the fertilized egg, okay, so I need to prepare myself for the developing baby, but this doesn't happen in every case, okay, and then what happens is it becomes maiuse and then उसके बाद वो breakdown हो जाता है in the form of menstrual blood flow। all right, चलो जी आगे चलते हैं। if the ovum does not get fertilized due to non availability of the sperm, ये तो हमें पता ही है, ठीक है, if in case it's not getting fertilized then what would happen is बच्चों, उसके बाद क्या होता है कि वही यहाँ पे वही थ्योरी लिखा हुआ है कि वो ब्लीडिंग के फॉर्म में जो है उसका इनर लाइनिंग निकल जाता है थ्रू वेजाइना, राइट, है ना। menstruation usually occurs, this is important, menstruation usually occurs 14 days after ovulation and lasts for about 3 to 5 days। ठीक है, देखो बच्चों menstrual cycle जो होती है ना, जो menstrual cycle होती है, if I talk about the cycle in whole, ठीक है ना, द साइकिल इन होल वुड लास्ट फॉर अराउंड 28 days, द एंटायर साइकिल, है ना। लेकिन जो ब्लीडिंग फेज होता है,
right? The bleeding phase, right? So it would last for around how much? Bleeding phase would last for around 3 to 5 days. ठीक है, 3 से 5 दिन ब्लीडिंग फेज चलता है. ऑल राइट. Now, after menstruation is over, the uterus starts building up again so that it may become ready to receive the next one. अब देखो मैंने क्या बताया था आपको कि यूट्रस जो होती है that is always preparing itself for bearing the baby, right? For getting the fertilized ovum, है ना. तो कोई बात नहीं, वो वापस से उम्मीद बांधना स्टार्ट करती है, राइट. सो व्हाट हैपेंस हियर इज दैट फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन के बाद, ठीक है, जैसे ही एक साइकिल कंप्लीट हुआ, व्हाट विल हैपन इज इट वुड अगेन स्टार्ट बिल्डिंग अप द एंटायर इनर लाइनिंग. ओके, वुड बिकम स्पंजी, मोर न्यूट्रिटिव, फुल ऑफ ब्लड कैपिलरीज, क्योंकि उसको फिर क्या लगने लगता है, ओके नाउ लेट मी प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर द नेक्स्ट टाइम. So that is the reason why in every 28 days a female receives menstruation, because there is ovulation, repeated ovulation. और अगर वहाँ fertilization नहीं होगा, if there is no fertilization बच्चा लोग, then what would happen? The ovum would die, and if it would die, then जो प्रिपेरेशन किया था यूट्रस ने वो किसी काम का नहीं है, तो वो पूरी इनर लाइनिंग क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो वो बाहर आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड सर्टेन टिश्यूज. ऑलराइट, ठीक है. तो चलो आगे बढ़ते हैं. ब्लीडिंग फेज 3 to 5 days रहता है, पूरी साइकिल 28 days लास्ट करती है. राइट इट डाउन, ठीक है. ब्लीडिंग फेज कितना रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में? फॉर 3 to 5 days. ओके, चलो मूविंग अहेड. इफ दी wait, the menstrual cycle is controlled by hormones. This is important. ये तो हमें पता ही है ना. अभी हमने देखा राइट कि menstrual cycle जो है that is totally regulated by the hormones. And now बच्चों, this is important to note that जो menstrual cycle है ना, we know that the uterus is basically menstrual cycle क्यों हो रहा है? Because the uterus is preparing itself, right? That is the chief importance. Now what happens is क्या menstrual cycle हमेशा एक female की body में चलते रहते हैं? Then the answer is no, quite no. All right, why? Because they get seized temporarily as well. ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि menstrual cycle जो है वो temporarily seized भी होता है. किन केसेस में हो सकता है? चलो temporarily seized pregnancy, the most important pregnancy, right? क्योंकि अब देखो, जैसे ही अगर एक ओवम फर्टिलाइज हो गया, राइट, तो यूट्रस जो है वो खुद को ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुकी है ना. एंड नाउ दैट यूट्रस नोज दैट ओके नाउ द बेबी इज टू बी इम्प्लांटेड हियर, इट वुड कम हियर. देन व्हाट वुड हैपन इज दैट इट वोंट ब्रेक इट्स लाइनिंग, है ना. इनर लाइनिंग क्या होगी? ब्रेक नहीं होगी, बिकॉज उसको जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना है, राइट. इट बिकम्स वेरी मच स्पंजी, फुल ऑफ लाइक वेस्क्यूलर, बहुत ज्यादा स्मॉल कैपिलरीज आ जाती हैं, सो एज टू प्रोवाइड एज मच नरिशमेंट. ठीक है, एंड देन द प्लेसेंटा ऑल्सो डेवलप्स, वील स्टडी लेटर, है ना. प्लेसेंटा भी डेवलप हो जाता है, ठीक है. तो भाई यूट्रस अपना इनर लाइनिंग क्यों डिसइंटीग्रेट करेगी, है ना. उसको तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है उसको, तो उस केस में इनर लाइनिंग डिस्टर्ब नहीं होती है और कोई मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो नहीं होता है. ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट. तो वहां पे क्या हो बच्चों, मेंस्ट्रुएशन क्या हो गए, टेम्परेरीली क्या हो गए, सीज हो जाते हैं. अब जैसे कि क्या है ना, कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जहाँ पे एक फीमेल में थोड़ा सा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, लाइक स्ट्रेस वगैरह के केसेस में, राइट. स्ट्रेस हो गया, कुछ बहुत ज्यादा परेशानी है इस तरीके से, तो वहां पे भी मेंस्ट्रुएशन या फिर कोई बीमारी है, लाइक यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट योर पीसीओडी. वी वोंट बी डिस्कसिंग इट हियर, बट यस, जैसे पीसीओडी है, पीसीओएस है, इन केसेस में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, द पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, राइट, क्वाइट वेरी फ्रीक्वेंट डिजीज. वी वोंट बी डिस्कसिंग इन देम, बट देन अगेन ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जहाँ पे मेंस्ट्रुएशन जो है वो टेम्परेरीली सीज हो जाते हैं, देन ट्रीटमेंट के बाद दे वुड स्टार्ट अगेन, राइट. एंड बट अगर हम नेचुरली सीज होने की बात करते हैं ना, तो मेंस्ट्रुएशन नेचुरली कब सीज होते हैं, तो दे गेट सीज इन केसेस ऑफ योर प्रेगनेंसी. ओके, है ना, प्रेगनेंसी के केस में, है ना. तो इसमें क्या होता है, see what is happening here, that thick and soft lining of the uterus contain a lot of blood vessels, है ना, which is needed for the growth and development of the fertilized ovum. तो इसीलिए वो डिसइंटीग्रेट नहीं होगी. एंड देन पोस्ट प्रेगनेंसी यानी कि पार्चुरेशन के बाद, पार्चुरेशन मतलब कि बच्चों डिलीवरी ऑफ द बेबी, वी स्टडी अबाउट इट, राइट. सो इट रीस्टार्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, और यू कैन से इट
पार्चुरेशन, है ना। बट जो डिलीवरी होती है उसका मेडिकल टर्म क्या होता है बच्चों, पार्चुरेशन, ऑलराइट। उसके बाद so now there is one another important term which is your oogenesis. Write it down बच्चों लोग, write it down. Oogenesis is a process of formation of ovum. Oogenesis is the process of formation of ovum. अभी क्लियर है, ठीक है। इसको लिख लो, oogenesis क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओवम क्या होता है, राउंडेड नॉन मोटाइल सेल, ठीक है। नॉन मोटाइल होता है, एक ही जगह पे फिक्स होता है, राइट। एंड मोटाइल क्या होता है, दोनों में से स्पर्म, फीमेल जो गैमीट है वो यूजुअली नॉन मोटाइल होता है, एंड मोटाइल होगा यहाँ पे sperm. Okay, so I hope this is clear. Now comes your fertilization, right? But the fertilization, that means the process of fusion of the male and female gamete is called as your fertilization. ठीक है, all right. अब देखो fertilization के बारे में I'll give you some detailed info right now, some very basic things, and then we look at to the theory. What all are the important points you can cover, right? See, fertilization में बच्चों क्या हो रहा है कि male and female gamete क्या हो रहा है, द मेल एंड योर मेल एंड फीमेल गैमेट, राइट। द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट जो है बन के क्या बना रहे हैं, एम्ब्रियो, ठीक है। ऑलराइट, तो क्या बनाते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट। तो ये जो इनका फ्यूजन होता है ना, इसके फ्यूजन को आप क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज योर फर्टिलाइजेशन। नाउ लेट अस जस्ट लुक एट द थ्योरी, ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, हम एक प्रॉपर फ्लो चार्ट फॉर्म में इसको आगे देखेंगे, ठीक है। सो फर्टिलाइजेशन में वी नो दैट यू नो एक ओवम जो है वो रिलीज होता है ओवरी से, क्या रिलीज होता है बच्चे लोग, ओवम। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वायबल फॉर 12 to 24 आवर्स, राइट डाउन। फॉर हाउ मच टाइम इट इज इट वायबल, फॉर 12 to 24 आवर्स, राइट इट डाउन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है, राइट इट डाउन। अब देखो बच्चों यहाँ पे हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर इज दैट आई एक्सप्लेन यू ऑन दिस स्लाइड। एक्चुअली अगर ये सबने लिख लिया हो, ये लिख लिया ना सब लोगों ने, ठीक है। सो आई जस्ट डू वन थिंग, आई राइट इट ऑन दिस स्लाइड, या चलो देखो। अब बच्चों होता क्या है फर्टिलाइजेशन में, लेट्स सपोज ये एक ओवा है या ओवम है या एग है, ठीक है, एग सेल मान लो। अब जैसे यहाँ पे स्पर्म आया, क्या आया, स्पर्म आया, ये हेड ऑफ द स्पर्म है, ठीक है, हेड ऑफ द स्पर्म है, ये उसका टेल हो गया, ठीक है, ये मान लो, है ना। अब जैसे स्पर्म के ऊपर हमने देखा था बच्चों क्या होता है, हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में, दैट दिस इज द एक्रोसोम, राइट। एक्रोसोम में क्या था, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, है ना, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स थे, राइट। सो व्हाट वुड हैपन इज दैट दीज हाइड्रोलिटिक दीज एक्रोसोम बेसिकली वुड डू व्हाट, कि यहाँ पे जैसे ही ओवम की बॉल पे जाके ये अंदर जाता है ना, तो व्हाट इट डज इज इट रिलीजेस दीज हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, क्या करता है यहाँ पे, रिलीज कर रहा है, ठीक है। ये रिलीज होने की वजह से जो ओवम की वॉल होती है ना बच्चों, जो वॉल होती है ओवम की, वॉल ऑफ ओवम, व्हाट हैपेंस इज इट गेट्स डिसॉल्व्ड, ठीक है, डिसॉल्व, है ना, क्या हो जाती है, डिसॉल्व। लेकिन यहाँ पे बात एक इंपॉर्टेंट नोट करने की वो ये है बच्चों, दैट यहाँ पे जो इसके हेड में न्यूक्लियस होता है ना, राइट, दी प्रो न्यूक्लियर, राइट, दी न्यूक्लियस जो होगा, ये न्यूक्लियस जो है, दी न्यूक्लियस, द मेल न्यूक्लियस, ओके, द मेल न्यूक्लियस, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ इसके डिसॉल्व होने से ये अंदर जाता है, ठीक है, ओनली दी न्यूक्लियस वुड गो इनसाइड, जो पूरी रिमेनिंग बॉडी है ना स्पर्म की, ये नहीं जाएगी, ऑलराइट, गेटिंग माय पॉइंट। तो अंदर कौन गया, इनसाइड द ओवम वुड गो इज जस्ट द मेल न्यूक्लियस, और वो कौन सा है, स्पर्म के अंदर जो न्यूक्लियस था, दैट वुड ओनली गो इनसाइड द ओवम, ठीक है।
अंदर जाएगा और उसके बाद यहाँ पे वो जो एग का जो न्यूक्लियस है उसके साथ क्या कर जाएगा, फ्यूज। क्या हो गया बच्चों इनका, फ्यूजन। बस यही होता है आपका फर्टिलाइजेशन। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, what was important is that the entire body of the sperm doesn't goes in. Getting my point? The entire body of the sperm won't go in. The acrosome would dissolve the membrane of the ova, and then जो उसका जो pronucleus है, the nucleus would enter inside and fuse with the फीमेल न्यूक्लियस। ऑलराइट, गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, इजी सा था। चलो आगे बढ़ते हैं, कहां तक हमने कवर किया था? यस, टिल हियर। ठीक है, so this is what is written here, and then zygote starts developing. अब जैसे इनका क्या हो गया, fertilization हो गया, then what would happen is that the zygote would start developing in the fallopian tube and form embryo. ठीक है, एंड लेटर इट मूव्स टू द यूट्रस। बच्चों पहले क्या होता है कि जैसे ही ओवम बाहर निकला, राइट, सो द फर्टिलाइजेशन वुड टेक प्लेस इन द फेलोपियन ट्यूब। कहाँ हो रहा है फर्टिलाइजेशन बच्चों? इनटू द फेलोपियन ट्यूब, राइट। फर्टिलाइजेशन किधर हो रहा है आपका, कहाँ मिल रहे हैं? इनसाइड द फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, स्पर्म्स भी वहां पहुंच गए, ओवम वहां से रिलीज होकर वहां पर है ही, तो फेलोपियन ट्यूब में हो रहा है आपका फर्टिलाइजेशन। राइट नाउ वहां से फर्टिलाइज होगी, क्या बना दिया बच्चों, एम्ब्रियो। उसके बाद ये एम्ब्रियो जो है, ये देखो इस तरीके से, ये एम्ब्रियो जो है, ये एम्ब्रियो धीरे धीरे से, देखो यहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस हो गया कंप्लीट। सी दिस डायग्राम, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट बन गया। ये जायगोट जो है धीरे धीरे जो है रिपीटेडली डिवाइड भी करता जाता है और आगे यूट्रस की तरफ जो है मूव भी करता जाता है। क्या हो रहा है बच्चों इसमें डिविजन भी हो रहा है, ठीक है, डिविजन भी हो रहा है इसका, प्लस आगे की तरफ लोकोमोशन भी हो रहा है ना। यानी कि बेसिकली क्या हो रहा है, ये यहाँ पे जायगोट बना, धीरे धीरे ये सेल्स में इसमें क्या होता जा रहा है, डिविजन भी होता जा रहा है, और ये फेलोपियन ट्यूब ओविडक्ट यानी कि द फेलोपियन, FTM राइटिंग, फेलोपियन ट्यूब की तरफ नीचे मूव भी होता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है बच्चों की, एक जगह आके यूट्रस की जो इनर लाइनिंग है, ठीक है, इनर द सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, यानी कहां पे, यूट्रस की एंडोमेट्रियम में। ठीक है, कहा, यूट्रस के एंडोमेट्रियम में जाके क्या हो जाता है बच्चों, ये घुस जाता है, इस लाइनिंग के अंदर घुस जाता है। राइट, सी दी हाफ पार्ट इज इस तरीके से बाहर, हाफ अंदर, उसके बाद ये अंदर चला गया पूरा, है ना। तो यहाँ पे ये जाके जो घुस रहा है, इसको हमने क्या बोला, दिस इज टर्म्ड एज योर इम्प्लांटेशन। क्या बोला बच्चा लोग इस टर्म को, वेट आई विल राइट इट समवेयर। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, this is what has this happened, implantation। implantation कहाँ हुआ बच्चे लोग, implantation कहाँ हुआ, in the inner lining of the uterus। alright, getting my point? चलो अब हम लोग एक बार वापस से इसका थ्योरी देखते हैं, ठीक है, and then we'll come back here again। alright, so it gets attached to the uterine wall and the whole process is called as your implantation। ठीक है, यही पढ़ा था, get attached to the uterine wall and the whole process is called as your implantation। alright, now placenta formation occurs between the uterine wall and the fetus which provides nourishment। बच्चों प्लेसेंटा का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, एंड राइट डाउन, प्लेसेंटा जो टिश्यू फॉर्म हो रहा है बिटवीन द यूटेरस का वॉल एंड द फीटस। ठीक है, मदर से किस फॉर्म में बच्चे को न्यूट्रिशन जाता है, वी ऑल नो, राइट, प्लेसेंटा। कौन सा, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा इज द कनेक्टिव टिश्यू जो कि मदर की यूट्राइन वॉल एंड फीटस के बीच में आके बन जाता है। एंड प्लेसेंटा का फंक्शन क्या हुआ बच्चों, इज इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग बेबी। ओके, सो राइट दिस डाउन, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्लेसेंटा इंपॉर्टेंट, इसका फंक्शन क्या है, प्रोवाइड नरिशमेंट। ओके, राइट इट डाउन, दिस इज इंपॉर्टेंट।
नाउ अब बच्चों कुछ आपको पॉइंट्स जो है पता होने चाहिए. देयर आर सर्टेन डेफिनेशंस. नाउ गेस्टेशन और यू कैन से जेस्टेशन पीरियड, इधर द गेस्टेशन पीरियड और द जेस्टेशन पीरियड क्या होता है. सी, जितने टाइम के लिए बेबी मदर की वूम में रहता है, अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो हाउ मच टाइम डज baby takes in order to fully develop, that is your 9 months or 40 weeks or 280 days. How much? Your 9 months, your 9 months or 40 weeks or 280 days. ठीक है, this is the period. Now write down the time period for which a developing fetus remains inside a mother's womb is called as a gestation period. क्या हुआ? The time period for which a developing fetus remains inside the mother's womb, ठीक है, until unless it's not fully developed to be pushed out of the body is called as a gestation period. अब next definition आता है बच्चों कि बेबी की डिलीवरी. ओके, आफ्टर द gestation period is over, the delivery of the child when it is expelled outside the mother's womb is called as your parturition. Important. So the process of giving birth, to the baby is called as your parturition. You need to remember these terminologies, babies. Okay, so please इस इन terminologies पे ध्यान दो. कौन सा? Your gestation period. Okay, then what is your parturition? Then हमने एक और पढ़ा था which is called as your implantation. Right? ठीक है, फर्टिलाइजेशन. पहले क्या होगा? ध्यान रखना है सीक्वेंस को. सबसे पहले होता है आपका फर्टिलाइजेशन. ओके, फर्टिलाइजेशन के बाद होगा आपका क्या? उसके बाद होगा आपका इम्प्लांटेशन. ओके, इम्प्लांटेशन. बच्चा इम्प्लांट हो गया यूट्रस की इनर वॉल पे, फिर उसका क्या होगा? डेवलपमेंट. तो उस डेवलपमेंट फेज को क्या बोलते हैं? जेस्टेशन. ओके, एंड देन जब फुली डेवलप हो जाएगा तो क्या करेगा? एक्सपेल हो जाएगा मदर की वूम के बाहर, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज योर parturition. ओके, so you need to remember these terminologies, बहुत ज्यादा जरूरी है. All right, so kiddies, come on, write it down and then we'll move ahead. Okay, easy है ना? बहुत easy सा है, कुछ भी इसमें ऐसा कुछ difficult नहीं है. Right, then one extra point is there is फर्टिलाइजेशन. आपका जो है कहाँ पे होता है बच्चों? फेलोपियन ट्यूब में. ओके, कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में. अब फेलोपियन ट्यूब के भी किस पार्ट में होता है? इफ यू रिमेंबर द पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब वी स्टडीज इज योर एम्प्यूला. ठीक है, एम्प्यूलरी पार्ट में. थिक पार्ट था ना जो कि, ठीक है, ओके, उसके बाद होगा. कहाँ होगा? एम्प्यूला के बाद, एम्प्यूला में होगा, सॉरी, एम्प्यूलरी रीजन. ठीक है, तो आई होप राइट इट डाउन. ये लिख लोगे तो इजीली समझ में आए. ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं. ठीक है, आ गया था समझ में यहाँ पे? सी, ये ओवेरी है. ठीक है, एग रिलीज हुआ यहाँ पे, और सी इस तरीके से स्पर्म आया. तो ये देखो यहाँ पे पूरा एरिया देख रहे हो आप, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है. ये एरिया जो देख रहे हो आप, ये पूरा का पूरा, ये क्या है आपका? यहाँ से यहाँ तक क्या था? ओविडक्ट, यानी कि फेलोपियन ट्यूब है ना. तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ. राइट, sperms entered through the vagina inside the female reproductive tract and then पहुंचे कहाँ पे? फेलोपियन ट्यूब में, जहाँ पे एग ऑलरेडी प्रेजेंट था. यहाँ हो गया फर्टिलाइजेशन. ये तो रहा पार्ट बच्चों उसका, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो. अगर नहीं होता है देन व्हाट इज हैपनिंग हियर इज जो यूट्रस लाइनिंग जो है वो ब्रेक हो जाती है. अब जैसे देखो यहाँ पे हो गया तो जाइगोट बन गया, एंड देन धीरे धीरे यहाँ पे आगे क्या हो गया? इम्प्लांट. ओके, राइट, इम्प्लांटेशन हो गया है ना. नहीं, चलो मूविंग अहेड. सी, इस तरीके से आपका जो है पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है. बेसिकली किस तरीके से हो रहा है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन टू फॉर्म अ जाइगोट. ठीक है, स्पर्म है, एक्रोसोम और प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स की हेल्प से एंटर किया ओवम में. ठीक है, और बॉडी मैंने बताया था कि बॉडी स्पर्म के अंदर नहीं जाती है, टेल और बॉडी क्या हो जाती है? लूज. ठीक है, और हेड ऑफ द स्पर्म जो है इट स्वोल्स अप. राइट, हेड जो होता है स्पर्म का वो थोड़ा सा स्वोलन हो जाता है, एंड इट एक्ट, उसके अंदर ही न्यूक्लियस होता है तो सिर्फ वही पार्ट जो है अंदर जाता है. ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट. हेड ऑफ द स्पर्म स्वेल्स अप टू फॉर्म मेल प्रोन्यूक्लियस, and then that male pronucleus fuses with the female pronucleus.
ठीक है। और इस तरीके से जो है मेल प्रोन्यूक्लियस जो है ना बच्चों, सिंस वी नो दैट दे आर हैप्लॉइड, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड सेल्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू राइट। तो मेल प्रोन्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 23 यानी कि n, राइट। सिमिलरली फीमेल प्रोन्यूक्लियस में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 23 यानी कि n। नाउ n प्लस n वुड बी 2n, सो 46। तो जो रिजल्टेंट यहाँ पे हमें जो जाइगोट फॉर्म हुआ उसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे बच्चा लोग? व्हाट इट वुड बी? इट वुड बी अ डिप्लॉइड, यानी कि 46 क्रोमोसोम। क्या होगा? डिप्लॉइड, यानी कि 2n, है ना? 2n, क्योंकि दोनों मेल एंड फीमेल गैमीट ने कितना कंट्रीब्यूट किया? 23। ऑलराइट, देन इट वुड गेट कन्वर्टेड इनटू अ जाइगोट एंड देन फर्दर डेवलप होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो। ठीक है। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट टेबल बच्चों, ठीक है। तो नथिंग, इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं है, इज जस्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर सर्टेन पॉइंट्स। ऑलराइट, सो दिस इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन दी सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते ही आ रहे हैं, राइट। बट देन अगेन दिस इज सॉर्ट ऑफ अ रिवीजन ऑफ द प्रीवियस क्लासेस। दिस वुड बी asexual रिप्रोडक्शन हमेशा यूनिपेरेंटल होता है, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, बट इन सेक्सुअल since we require male and female gamete, there are two types of gamete production, so it is always your biparental, दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट। गैमेट अगर सिंगल पेरेंट कर रहा है तो ऑब्वियसली गैमेट फॉर्मेशन है ही नहीं, so gametes are not formed, but here obviously they are formed, जैसे कि female gamete and male gamete in form in humans, right? That is all what we study. Then definitely अगर parent नहीं है, gamete formation नहीं है, gamete formation नहीं है तो fertilization नहीं है, right? So no fertilization, लेकिन यहाँ पे जो है fertilization होता है। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज बच्चों कि यहाँ पे क्या होता है ना, एक सेल जो है वो दो, एक ही पेरेंट से दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, राइट। दैट इज ऑल वी स्टडीज इन एसेक्सुअल, राइट। बट हियर what happens is that gametes are formed. We know that gametes are haploid. So here a single cell which is your diploid is divided into 4. Okay, how many? So basically यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो ये दो में डिवाइड होगा, पहले ये दो में डिवाइड होगा और वो दो फिर जो है इस तरीके से 4 में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। वेट, आई विल शो यू बच्चों। जो मायोटिक डिवीजन होता है ना, मायोटिक डिवीजन में भी फर्स्टली द सेल वुड डिवाइड इनटू 2। ओके, जैसे कि ये सेल है, पहले ये दो में डिवाइड होगा, ठीक है, फिर ये दो और फर्दर दो में डिवाइड होगा। दैट इज हाउ योर मायोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस, ठीक है। यानी कि पहले मायोटिक डिवीजन में भी माइटोटिक होता है, दो डिवाइड होते हैं, फिर वो दो में जो है आपका मायोटिक, इस तरीके से, ठीक है। हाउएवर दिस प्रोसेस इज साइमल्टेनियस, सो दैट इज व्हाई दिस इज मायोटिक एंड दिस इज mitotic, ठीक है। See, it involves mitotic cell division and this involves your meiotic cell division. Now, we know that asexual reproduction में जो progeny बनती है, they're exact clones, copies of their parents. So, daughter individuals are genetically identical to the parent, and यहाँ पे different है, since there is a fusion of the genetic material, तो genetic level पे changes आ जाते हैं, right? Then it does not contribute to the evolution. ये सब हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है क्लासेस में, राइट। ऑब्वियसली बात है, इवोल्यूशन कैसे होगा जब जेनेटिक मटेरियल सेम ही जो है वो डिवाइड होता जा रहा है, राइट, है ना। So it contributes to the evolution by introducing variation in the evolution by introducing variation into the offspring, ठीक है ना। इवोल्यूशन होता है कैसे? बिकॉज जेनेटिक लेवल पे जो है दो अलग गैमीट का फ्यूजन हो रहा है। आई थिंक दिस राइट इट डाउन, दिस कॉपी, ऑलराइट। तो जेनेटिक लेवल पे बेसिकली क्या हो रहा है इसका? genetic level पे they are evolution, right? The genetic material to different genetic materials, right? To different gametes of the opposite sexes are fertilizing. So there is a difference in the genetic level. Now, if there is a difference in genetic level, that material is being transferred into the progeny. So obviously बात है कि parent से difference आएगा, right? There would be evolution. All right. So I hope it's clear. Just write it down. Excuse me. ठीक है, so I hope it's clear.
So this was our class. So I hope बच्चों की menstrual cycle जो इतना hype बना हुआ होता है, that's very difficult. What is happening? Why is it happening? Exactly menstrual cycle का मतलब क्या है? We learned about different terminology. So I really hope that this helps you. And whatever, how you felt about the lecture, whatever it is, I'm always open to your, your comments there. So I always look forward to it. So please do drop your comments in the comment section. And also, if you like this lecture, enjoy it. आपको मेरे साथ biology पढ़ने मजा आया, ये समझ आया, ठीक है? So please do hit that like button and also subscribe to the channel or comment section so that I am leaving no child behind, and also bell icon press कर देना so that आपको ऐसे ही interesting lectures ना miss ना हो. And also stay tuned with me. I, Dr. Gitanjali Sharma, taking a goodbye from you guys for now. And thank you so much for being so lovely, being here, listening to me. Love you all. Take care. And I'll see you in the next class. Bye bye.